Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Of late, I have observed a trend has become which is disrupting the study of many people. And these people they are asking repeated question, Sir, are you sure notification will come? Are you sure notification will come? Now, why such type of assurance is required by someone? I think there are informations that is given on this channel time and again, and once that information is provided, that is authentic. If you have faith, believe in that, focus on study. If you don't have faith, it is your choice what is to be done. Confirmation, then reconfirmation, and then reconfirmation only waste your energies. And it only deviates you from the right path. This is a channel of right advice at right time. If we have told that such and such notification will come, that means it will come. Timeline may not be definite because these days when organizations are struggling with so many issues, they will have their own timeline when they will come out with notification. Because there are certain exams where dates are fixed, like IBPS, where calendar is there. But there are other exams where there is no timeline fixed. So they come as per their convenience. But the purpose of sharing information is that you should have first mover advantage. That means you should start your study well in advance. But some of the people, they are always disbeliever. So the people, those are disbeliever, it is their choice. Asking the same question and again and giving a ritual reply again and again, I think it is not good for anyone. Whatever information is shared with you, it is based on authentic sources. So it is in your interest to accept it in toto. But if you have any doubt, it is your choice. No one is forcing you to study. No one is telling you to believe in the information. This is your choice. Because sometimes I feel that some people are overplaying with these type of questions. Please resist and let others study. If you don't want to study, it is your choice. Okay? God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक फैशन हो गया और कुछ लोग निरंतर एक ही तरह के प्रश्न बार बार पूछते हैं कि सर आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये आएगा, सर आपको पक्का है ये नोटिफिकेशन आएगा, सर क्या आप कंफर्म करते हैं ये नोटिफिकेशन आएगा. मुझे ये समझ नहीं आता ये प्रश्न का अभिप्राय क्या है. ये वो चैनल है जो राइट एडवाइस एट राइट टाइम देता है. ये वो चैनल है जो आपको कोई सूचना देता है, उसका आधार होता है. और सूचना देने का मकसद क्या है? बिल्कुल सिंपल मकसद है कि आप और लोगों से पहले पढ़ाई शुरू कर लें. उस पर आपको विश्वास है तो पढ़ाई शुरू कर लीजिए. आपको विश्वास नहीं है तो जाने दीजिए. बार बार उस प्रश्न को पूछकर, बार बार सेम उत्तर पाकर आपको क्या मिलेगा? यदि हम किसी टॉपिक के ऊपर आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ आएगी, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, आपको वक्त से सूचना दे देना ताकि आप अपने टाइम का सदुपयोग कर सकें. आपको करना है सदुपयोग या नहीं, ये आपका अपना काम है. आपको पढ़ाई करनी है उस एग्ज़ाम के लिए तो कीजिए, नहीं करनी है तो मत कीजिए. इसमें कोई आपको फोर्स थोड़ा ना कह रहा है कि भाई आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर लो. कोई नहीं कह रहा है ऐसा. इसलिए ये आपकी अपनी सुविधा है. मगर किसी बात को बार बार निरंतर पूछते रहना,
कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जो लोग पुराने हैं, जो इस चैनल पर आज तक पहले से हैं, उनको पता है कि सर जो कहते हैं वो होता है। तो उनको इस तरह के ना तो वो प्रश्न पूछते हैं और ना ही वो बार बार डिसबिलीव के मोड में रहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों में उस सूचना को एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ ने एक्सेप्ट किया। जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनमें से अधिकांश लोग आज नौकरी लग चुके हैं, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया, बाद में उन्होंने कन्फेस किया कि सर हम रिग्रेट कर रहे हैं, हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप इतने सीनियर आदमी की बात पे भी बार बार आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि सर ये सूचना ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ये तो आपकी अपना दृष्टिकोण है ना। मैंने अपनी बात रख दी, आपको अच्छी लगे अपना लीजिए, नहीं अच्छी लगे छोड़ दीजिए, इसमें क्या है। कोई आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप जरूर पढ़िए, कोई नहीं कह रहा आपको उस सूचना से फ़ायदा उठाना है तो उठा लीजिए। देखो, ये जो चैनल है ये वो चैनल नहीं है कि जहाँ पर कोई व्यू लेने या उसके लिए कोई सूचना शेयर कर देंगे। मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे विषय हैं उसमें मैं टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जहाँ नेग्लिजिबल व्यूज़ हैं, फिर भी मैं रोज़ बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि वो आपके लिए नितांत जरूरी हैं, वो आपके कैरियर को बनाने वाली वीडियो हैं, वो मेरी दृष्टि में आपके लिए नेसेसिटी है। आपको नहीं ज़रूरत उसकी, आप नहीं देखते, ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। कई लोग उन वीडियोस को तो देख लेते हैं जिसमें कुछ नहीं है, वहाँ बहुत व्यूज़ आ जाते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपके लिए नितांत जरूरी हैं, मगर उसमें व्यूज़ नहीं आते। तो जिन लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि कोई बात व्यूज़ के लिए कही जा रही है, वो शायद गलत फहमी का आप शिकार हैं। हो सकता है कहीं से आपके दिमाग में ऐसी बात बैठ गई हो, इसको निकाल लीजिए। जितनी जल्दी निकाल लेंगे आपका फ़ायदा होगा। इस चैनल पर जो भी सूचना दी जाती है उसका कोई ना कोई आधार होता है। वो किस व्यक्ति ने बताया, कैसे बताया, किस दृष्टिकोण से बताया, वो विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु ये है कि वो सूचना आपको इसलिए दे दी गई है ताकि आप और लोगों से पहले अपनी पढ़ाई शुरू करके जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा उससे फ़ायदा उठा लें। अब एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझनी है, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनका कैलेंडर आता है, वो लगभग तिथियां पहले से निश्चित होती हैं और उन दिन तिथियों पे वो क्रम बर क्रम चीज़ें आती रहती हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि आज हम बात कर रहे हैं आज ही वो अधिसूचना आ जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो जल्दी भी आ सकता है, देर में भी आ सकता है, काफ़ी देर में भी आ सकता है, पर आएगा ज़रूर, क्योंकि कहीं पर उस विषय पर कुछ ना कुछ चल रहा है। अब वो कंक्लूजन की स्टेज तक कब पहुंचेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ऐसी रिक्रूटमेंट्स होती हैं जहां टाइम बाउंड नहीं होती। वो मान लो कहीं पर किसी मैनेजमेंट ने अपनी यूनियन को एश्योरेंस दे दी कि हम ये रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें वो मैनेजमेंट बाध्य नहीं है कि वो 1 महीने में ही नोटिफिकेशन निकालेगी या 2 महीने में निकालेगी या 3 महीने में निकालेगी, पर वो आएगा, ऐसी एश्योरेंस उसने दे दी है। तो जब उसने एश्योरेंस दे दी है और वो हमें सूचना मिल गई है तो हम उसका आधार बना के कई बार कह देते हैं ये नोटिफिकेशन आने वाला है, आप पढ़ाई शुरू कर लो, क्योंकि उसका बेस है। मैनेजमेंट कोई हल्के में कोई एश्योरेंस नहीं देती है, पर वो टाइमलाइन भी नहीं देती है। इस बात को हमें समझना है। काफ़ी ऐसे विषय हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं वो 1 महीने में पूरा हो जाता है, कोई ऐसे विषय हैं जो 6 महीने में पूरे होते हैं, कोई ऐसे विषय हैं वो 1 साल में भी पूरे होते हैं। पर जो लोग उस विषय को एक अच्छी सूचना समझकर पढ़ाई शुरू कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो सिर्फ इसी बात की चिंता करते रहते हैं कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों होगा, ये होगा, और फिर जिस दिन आ जाता है
उस दिन वही लोग कहने लगते हैं सर अब 30 दिन में कैसे तैयारी होगी, सर अब 60 दिन में कैसे तैयारी होगी। अरे भाई आपको तो बहुत दिन पहले से बता रहे हैं, आप ही नहीं विश्वास कर रहे थे। तो अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा, फिर मैं पेपर को निकाल लूंगा, ये उसकी किस्मत है। अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और वेरियस लोग बताते हैं, खाली मैं नहीं बताता, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग हैं जिनके अपने अपने साधन हैं जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपके हित में करते हैं। उस हित को समझिए। अननेसेसरी आर यू श्योर, व्हेन इट विल कम, इट हैज़ नॉट कम। आप दूसरे को अननेसेसरी ट्रिगर्स मत दीजिए, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लोग आपको सूचना देना बंद कर देंगे, आपका नुकसान होगा। ठीक है ना। ये जो कई लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ होती है कि पता नहीं इनको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग हर काम फायदे के लिए नहीं करते हैं। जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ कोई इसलिए करता है कि उसको अच्छा लग रहा है वो करने में। कुछ लोगों को अच्छा लगता है दूसरों की मदद कर कर, कुछ लोगों को अच्छा लगता है दूसरों का कैरियर बनाकर, कुछ लोगों को सुकून मिलता है कि हाँ मेरे इन्फॉर्मेशन से, मेरी नॉलेज से हजारों बच्चों का फ़ायदा हो गया, चलो मेरा जीवन सफल हो गया। हर आदमी का अलग दृष्टिकोण है, सबको एक पैमाने में मत नापिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी आपकी मर्जी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, मगर ये इस तरह की चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे, सूचना का फ़ायदा उठाना सीख लेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में जो लोग कामयाब हैं, जो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनके अंदर एक ही यूनिकनेस है, वो कहीं से सूचना निकाल लेते हैं और उस सूचना का पहले फ़ायदा उठा लेते हैं। जो सूचना सार्वजनिक हो जाती है उसके बाद जो उसके साथ चलते हैं वो पिछड़ जाते हैं, और जिनको पहले सूचना मिल जाती है और उस सूचना के लिए वो तैयार हो जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। यही सूचना का फ़ायदा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।